आईपीएफ अथॉरिटी का सुझाव है कि सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.iepf.gov.in पर लॉग ऑन करें। So India 52 for 3 and we have been through 9 overs now. As here is the next delivery from Hafiz, who did bowl his first over very well, the fifth bowler from the side, and all that the right-handed Kohli does. It plays it down into square leg, and Kohli is good at picking up singles. Shadab, the fielder, quickly picks up and shows the urgency and hurls the ball and makes sure that a second run isn't taken. But Pant, one thing good about him is the moment you give him one outside the leg stump, he shows his heroics and sends the ball into the backward, rather the fine leg region for 4 runs, just 2 drops inside the fence. और लेग स्टंप के बाहर गेंद उन्होंने की, ये देखते हुए कि उन्होंने फाइन लेग दायरे के अंदर किया हुआ था, बहुत सूझबूझ के साथ, फायदा उठाते हुए, ये देखते हुए कि फील्ड प्लेसमेंट के अनुसार बॉलिंग नहीं की गई है। इस बीच बहुत बढ़िया बैकफुट का स्ट्रोक खेलते हुए सीधे पॉइंट बाउंड्री की दिशा में तीर की तरह गेंद जा रही है। एक और चौका भारत को मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगा है वहां पर, और ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। That last delivery, that was too close for comfort, and all that the batsman Pant did was the left-hander moved away from the line of the ball, and this ball would have blown his off-stump away had it not contacted the bat, but smartly placed the ball square at the wicket and waited for the ball inside the crease and sent it thundering down for 4 runs. As here is Hafiz bowling the next one, and this time Pant comes audaciously forward, imperiously plays the ball into the onside, and he shows the kind of courage. And whatever be the situation, one thing good about Pant is he never changes his attitude. One more run taken, India 58 for 3. स्लॉग स्वीप काफी करते हैं स्पिन के खिलाफ ऋषभ पंत, और कई बार इस तरह के स्ट्रोक खेलने में खतरे में ही पड़ जाते हैं। लेकिन वो जो बैकफुट का पॉइंट पर उन्होंने स्ट्रोक खेला, मैं समझता हूं आज के दिन का सर्वश्रेष्ठ स्ट्रोक था वो। दंदनाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर हो गई थी। कोहली एक सिंगल दौड़ते हुए गेंद, इससे पहले कि ऑन साइड में फील्ड की जाए, 1 रन और भारत के खाते में। पंत 18-17 गेंदें, कोहली 26-24 गेंदें, 59 रन, 3 विकेट पे भारत। 10वां ओवर पूरा होने जा रहा है। इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा, 2 गेंदें शेष हैं, और रन रेट भारत का इस समय 6.10। Absolutely, 6.10. As here is Hafiz bowling the next one, and this time Pant wrapped on the pad, but probably that ball was leaving the leg stump after pitching on the off and middle, and half-hearted appeal, more of hope, less of conviction by the bowler, and the umpire just moves away, says nothing doing. So one more run takes the India score up to 59 for 3. We are in the 10th over, just about one more delivery to go, and post this delivery we'll see halfway mark being covered, as Pant this time gets a delivery which is short of a length around the wicket from Hafiz, and all that he does is just stylishly plays the ball into the wideish mid-on region, and before the ball's picked up, crosses over for a single. He moves up to 19. Virat Kohli on 26 of 24. India 60 for the loss of 3 wickets after 10 overs. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। तो आधा खेल हो चुका है भारतीय पारी का, 10 ओवर का खेल हो चुका है। अगर लेखा जोखा प्रेम लें तो शुरुआत शाहीन शाह अफरीदी ने क्या शानदार की थी, बढ़िया यॉर्कर गेंदें उन्होंने की थी। उनकी यॉर्कर एक खास खुसूसियत लिए हुए होती हैं, कुछ अलग होती हैं। बुमराह भी यॉर्कर करते हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी की अगर यॉर्कर अगर आप देखें तो वो ज्यादा अलग होती हैं, डिप करती हैं गेंद को। जब वो बॉलिंग करते हैं तो एक एंगल डिलीवरी वो करते हैं। ज्यादातर यॉर्कर्स जब वो करते हैं तो एज ऑफ द क्रीज से करने की कोशिश करते हैं, और फिर दिशा का परिवर्तन होता है। लेकिन राहुल का विकेट जिस तरह से उन्होंने चटकाया, राहुल को कुछ समझ में नहीं आया था, कि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि वो पहले इनसाइड एज लगा, स्क्वायर ऑन हो गए थे, इनसाइड एज लगा, फिर थाई पैड पर टकराया, और फिर जाके स्टंप से टकराया। तो मतलब इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि राहुल को कुछ पता नहीं था। उनकी तकनीक पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी थी। इतना ज्यादा आजकल सीमित ओवर्स का खेल होता है, लेकिन जैसे बार बार ये कहना पड़ रहा है, दाद देनी पड़ रही है कि शाहीन अफरीदी इतने लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी होकर गेंद को इतने आगे टिप्पा बार बार जब इच्छा हो, और वो भी पहले ओवर में। और हमने इस बात को कहा था प्रेम, और आपने रिकॉर्ड भी बताया था कि वो पहले ओवर में विकेट चटकाने में माहिर हैं T20 में। Out of his 61 innings, on 20 occasions he's taken a wicket in his very first over. Well, IEPF authorities in the meanwhile suggest to include nomination in all investments. Be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. Now, one more interesting thing about this 10 overs, Vineet, let me highlight this. Pakistan has just given one extra.
disciplined bowling. You just seen that one no ball and no wides, nothing. So one must say that the bowlers have been conditioned to keep focus on their line length, keep the batsman cramped. और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये नजर आ रही है, वो ये है कि जब से ऋषभ पंत खेलने के लिए आए हैं और मैदान पर एक बाएं और एक दाएं हाथ का बैट्समैन है, तो तब से कुछ अपनी लाइन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। कुछ लेग स्टंप के आसपास गेंदें मिली हैं, जिसका भारतीय बैट्समैन ऋषभ पंत ने विशेष रूप से फायदा उठाया है। ये युवा बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के जो शादाब हैं, स्पिनर्स हैं। आईपीएफ अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें और एक सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.ipf.gov.in पर लॉग ऑन करें। Well, a quick look at the bowling analysis is Shaheen Afridi, 3 overs, 19 runs, 2 wickets. Imad Wasim, 2 overs, 10 runs, no wicket. Hassan Ali, 1 over, 6 runs, 1 wicket. Shadab Khan, 2 overs, 12 runs, no wicket. And Mohammad Hafiz, 2 overs, 12 runs and no wicket. हफीज की बॉलिंग में अगर आप देखें, वो ऑफ स्पिन बॉलर हैं और राउंड विकेट बॉलिंग करते रहे हैं। उनकी बॉलिंग में एक जो विशेष बात उठकर आती है, उनका स्विवल। कई बार उनके बॉलिंग एक्शन संदिग्ध पाया गया है, कई बार उनको सस्पेंड किया गया है क्रिकेट से, लेकिन इस समय ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। लेकिन वो स्विवल है, उससे वो ब्रेक गेंदों पर उनको मिलती है, वो बड़ी उल्लेखनीय बात है। और दूसरी बात यह है कि हसन अली की रिस्ट पोजीशन, ये युवा बॉलर हैं, बहुत तेज तर्रार बॉलर हैं, हल्का फुल्का शरीर है, बहुत ज्यादा कदकाठी तेज बॉलर की नहीं है उनकी, लेकिन उसके बाद भी बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। IPF authorities suggest to include nominations in all investments. Be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. Now, another interesting thing is only 2 players from Pakistan side have played against India in the T20. As here you find Haris Rauf coming into bowl. The first delivery and Pant in full bloom tries to play the ball right into the region of Asif Ali, who's patrolling the area of sweeper cover, picks it up, 1 bounce, and he just moves away from the line of the ball. The Indian batsmen have to be now careful. They will certainly get the ball in line of stumps, and what Pant is effectively doing is moving away from the line of the ball and playing it on both sides of the wicket, and that's quite courageous of him. और वो जो रोहित जिस तरह से शाहीन की गेंद पर आउट हुए थे, वो उनके पिछले पैर पे जाके लगी थी। आप समझ सकते हैं कि उनकी जो पोजीशन है उस गेंद के साथ घूम रही थी। जब आप स्क्वायर ऑन हो जाते हैं तब इस तरह की स्थिति बनती है। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, वाइड का इशारा आ रहा है न्यूजीलैंड के अंपायर गैफनी का द्वारा, जो कि खुद एक क्रिकेटर हैं, और एक अतिरिक्त रन इसके साथ बढ़ते हुए 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पंत 20 और कोहली खेल रहे हैं 26 रन बनाकर। Yes, well, and Pakistan has lost one of the reviews, and special gesture by the ICC for having 2 reviews in each of the teams. And Vineet, I'm sure you know more about it. बिल्कुल, कोरोना जब से शुरू हुआ है तब से एक अतिरिक्त DRS दिया गया है हर टीम को, क्योंकि बीच में न्यूट्रल अंपायर्स नहीं थे। इस बीच किनारा लेती हुई गेंद गई है स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ, उस और फील्डर है, इससे पहले कि वहां पे उसको फील्ड किया जाए 1 रन जरूर मिल जाएगा। फकर वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं और उन्होंने उस गेंद को फील्ड कर लिया। अफरीदी और कोहली का जहां तक लेखा जोखा है, 9 गेंद 11 रन 4 डॉट बॉल 1 छक्का, और स्ट्राइक रेट बन गया है अफरीदी के खिलाफ कोहली का 122 का। तो हरीश रौफ अच्छे तेज तर्रार बॉलर हैं। पाकिस्तान के ही नहीं, दुनिया के तेज तर्रार बॉलर्स में उनकी गिनती है। बहुत कम, कभी कभार ही धीमी गेंदें करते हैं, और नई गेंद जब उनको दी जाती है, खासकर अगर एक लेफ्ट हैंडर हो, तो वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। दाएं हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद, और बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया, उसको पास में से निकाल दिया, पॉइंट फील्डर के पास से निकाल दिया, और इमाद वसीम जिससे पहले की बाउंड्री लाइन पर उसको फील्ड करें 1 रन, और भारत के खाते में 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर 1 चौका और 1 छक्का लगाया भारतीय कप्तान ने। 25 गेंदों पर 27 रन बनाकर वो खेल रहे हैं, और बड़ा ही दिलचस्प इस समय ये और नाजुक महत्वपूर्ण समय है इस मैच का। Yes, the ball has become more softer. It is now in the 11th over, and India will have to capitalize, because this is the time they have to kind of push in and put their feet on the gas. As here is Rauf bowling into Kohli, and Kohli gets his delivery, which was an off cutter, pitching on the off stump, coming onto the middle stump with good amount of pace there. And Kohli, all that he does is, though half-heartedly, but then he plays the ball to the right of the bowler there. There was a fielder who was rushing in, but still took the chance because he was coming on his front foot and takes up a single. That takes the score up to 65 for 3. The score is cantering, not galloping. There was a time when they both went for some boundaries and sixes, but that is being very sparingly done, because another wicket from here, and if Pakistan can see the back of Kohli, that will be a serious jolt for India. 65 for 3. We are in the 11th over.
ओस होगी बाद में। गेंद को ग्रिप करने में स्पिनर्स को बहुत मुश्किल होगी और भारत का आक्रमण स्पिनर्स पे ज्यादा आधारित है। इस बीच हारिस रऊफ की अगली गेंद को ड्राइव को छापिश, लेकिन फील्डर थोड़ा सा पीछे रह गया। खतरनाक ढंग से गेंद उड़ गई थी और वहां पर पंत जबकि बैटिंग कर रहे थे। पंत बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और इससे पहले कि वाइडिश मिड ऑफ पर गेंद आए उससे पहले टिप्पा खा गई थी, लेकिन खतरनाक रूप से गेंद ऊपर उड़ गई थी। मैक्सवेल हो, जाम्पा हो, तबरेज शमसी हो, सुनील महाराज हो, आदिल रशीद हो, मोइन अली हो और वेस्ट इंडीज के आकिल हुसैन हो, शाकिब अल हसन हो, ये सारे ही जितने भी बॉलर्स हैं वो बड़े सफल रहे हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। A challenge for the Indian mystery spin bowler Varun Chakravarti. We face the last delivery of this over from Rauf. Rauf, who doesn't have much of change of pace in his bowling, normally bowls the ball with a similar pace. Here's he coming in over the wicket to Pant, and Pant drives straight as a ramrod. The ball will probably be fielded, yes, on the mid-on region. There's a fielder coming in because the Pakistani dresses are green. They merge with the grass and sometimes difficult for us to see as well. So 11 overs gone. India are 66 for the loss of 3 wickets. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामला विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। पिछले कुछ ओवर से कुछ अपिश ड्राइव, जब ड्राइव कर रहे हैं गेंद हवा में ज्यादा आ रही है, ऋषभ पंत को संभलना होगा। हालांकि मैं तारीफ करना चाहता था उनके उस एक स्ट्रोक की जो उन्होंने एक ऐसा स्ट्रोक खेला था स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में और इन फील्ड के ऊपर से उसको खेला था और उसमें ये लग रहा था कि ये फील्ड को पहचान रहे हैं। 2 फील्डर्स के बीच में से उस स्ट्रोक को खेला था और बड़ा प्रशंसनीय स्ट्रोक था। लेकिन अब पिछले कुछ ओवर से ऐसा लग रहा है कि गेंद, जैसा कि आपने बताया, वो कारण भी हो सकता है कि कुछ नरम हो गई है, उतनी सख्त नहीं रही है और इस वजह से वो गेंद पे जब रुक कर आ रही है तो उनकी ड्राइव अपिश हो रही है। तो आईपीएफ अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.ipf.gov.in पर लॉग ऑन करें। 66 रन 3 विकेट पर, पंत 24 गेंदों पर। कुल मिलाकर बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट लाजवाब रहे हैं बाबर आजम का। और बाबर आजम का जिक्र हम करेंगे जब वो बैटिंग करने के लिए आएंगे। इस समय विश्व के चोटी के बैट्समैनों में उनकी गिनती की जाती है। बहुत ही आकर्षक बैटिंग वो करते हैं, लुभाते हैं लोगों को कि वो मैदान पर आकर उनको देखें। इतने बढ़िया आकर्षक बैट्समैन है। कप्तान बहुत अच्छे हैं तीनों फॉर्मेट में। पाकिस्तान के कप्तान वो हैं। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मंगलवार को 26 अक्टूबर यानी दिन में 2:30 बजे से आप जरूर उसको देख पाएंगे, लेकिन 3:30 बजे पहली गेंद होगी। अगली गेंद को एक हाथ हटाकर काफी स्ट्रोक्स खेलते हैं। ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला है, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। इसमें निश्चित ही 6 रन उनको मिल जाएंगे और ये लगा उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। Oh, what a shot from Pant there. One-handed 6, and you rarely see this one happening. He removed his bottom hand and with the hand that guides the shot, placed this one deep into the mid-wicket region, miles into the crowd. And this shows that it was timing, not the force. इतना शोध क्रिकेट में हो रहा है और अब ये साबित कर दिया गया है कि ऐसे भी लम्हे होते हैं क्रिकेट में जब आप एक हाथ से खेलें तो आपको ज्यादा इंपिटस मिलता है, ज्यादा मोमेंटम मिलता है, ज्यादा शक्ति मिलती है। और आईपीएल में भी बदस्तूर ये करते रहे हैं ऋषभ पंत। ऊंचा लंबा स्ट्रोक, पॉपिंग क्रीज से जरा सा पीछे, सीध में, बैट्समैन की सीध में, ऊपर हवा में जाती हुई गेंद, हवा जिसको आप कहते हैं हवा, खुद गेंद को दर्शक दीर्घाओं की तरफ ले जा रही थी, उस ओर गई थी और बेहतरीन स्ट्रोक उन्होंने खेला था। और आजकल जब कोरोना का युग है और खुशकिस्मती से वो अब पकड़ में आ गया है, गिरफ्त में आ गया है, लेकिन फिर भी अंपायर के लिए कोई परेशानियां कम नहीं हुई हैं। अपने पैर से गेंद को टिकाकर जब वो वापस आई दर्शक दीर्घा से, उसको सैनिटाइज किया। As here's the next delivery and that's been lofted in the air and that should be another 6. ये लगा उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। तो जिस तरह से स्ट्रोक को खेलते हैं एक लेंथ डिलीवरी,
संतुलन बहुत बढ़िया नहीं था। ऑफ स्टंप की सीध में ये गेंद थी, उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और बहुत जल्द, जिस तरह से धोनी का हेलीकॉप्टर स्ट्रोक था, उसी तरह से ऋषभ पंत का ये एक हाथ का लॉफ्टेड ड्राइव बॉलर के सर के ऊपर से और बॉलर या मिड ऑफ के ऊपर से जब वो खेलते हैं, मिड ऑफ दायरे के अंदर था और उसके बाद उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला था। कई बार आईपीएल में भी इस स्ट्रोक को उन्होंने खेला है। Yes, he was trying to reach the ball. Meanwhile, here's the next shot into the point region and the second run being taken. Oh, that was absolutely splendid effort by both these in the center, and their partnership is slowly progressing to 49. It is an innocuous way the partnership has developed, and one must say that Pant is slowly showing his true colors and making sure that he torments the bowlers and audaciously going and playing the shots, and those two one-handed sixes is absolutely unimaginable. One to the mid-wicket region and the second a lofted shot into the long off region. ऋषभ पंत जिनके की फॉर्म के बारे में कुछ चिंता जताई जा रही थी, इस समय जो उनके लिए फील्ड प्लेसमेंट है, लेग साइड में एक फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर है, एक स्क्वायर लेग भी सीमा रेखा पर है, ऑफ साइड में पॉइंट और कवर के बीच में एक खिलाड़ी तैनात कर दिया गया है और लॉन्ग ऑन है और एंगल डिलीवरी को डिफ्लेक्ट कर दिया। गेंद जा रही है फाइन लेग क्षेत्र में, फील्डर है, एक रन जरूर मिल जाएगा। भारत का स्कोर जा पहुंचा है 81 रन, 3 विकेट को नुकसान पे। 12वें ओवर की अंतिम गेंद की प्रतीक्षा की जा रही है और इसके साथ ही 50 रन की बेशकीमती साझेदारी पूरी हुई है कप्तान और उनके बहुत ही प्रिय खिलाड़ी ऋषभ पंत के बीच में। Oh, that's indeed a valuable contribution by these two. And Rishabh Pant was shaky initially, but now he's probably watching the ball better and showing the kind of confidence required. And I'm sure the Indian spectator is really liking every shot of his. Hassan Ali bowls into Kohli, and Kohli walks into the shot, comes on the front foot, takes almost 2 steps forward, plays the ball across the line to Hafiz, rather the Pakistan captain there. Babar fielding there at shot mid-wicket region, picks up, and the batsmen haven't even thought of a single there. So that marks the end of the over. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। आजकल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी की जरूरत है भारी, तो आप क्यों हल्के पड़ो। शुरू करो एंड्योरामास, पाओ सही वजन और बढ़ाओ बेहतर इम्यूनिटी की ओर पहला कदम। ना कमजोर रहो, ना कमजोर दिखो। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। ऋषभ पंत अगर मैदान पर हो तो आप अपनी निगाहें हटा नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और हालांकि बीच बीच में धड़कनें भी बढ़ा देते हैं। अगर आप भारतीय क्रिकेट प्रेमी हैं तो कुल मिलाकर बड़ा ही दिलचस्प रोमांचक क्रिकेट देखने को मिल रहा है। सनसनीखेज शुरुआत हुई इस महत्वपूर्ण मुकाबले का, सुपर संडे का सुपर मुकाबला। ये 7वां विश्व कप है T20 का और शादाब लेग स्पिनर ही बॉलिंग करने जा रहे हैं। 81 रन 3 विकेट पर। ये 13वां ओवर है पारी का और इस गेंद को घूमकर खेलना चाहते थे। विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, वहां पे जा रहे हैं रॉफ, हरीश रॉफ उस गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे। तब तक पलटकर ऋषभ पंत दूसरे रन के लिए भी आ रहे हैं। Creating sufficient pressure for the bowler Rishabh Pant, who came in 2017 into the T20 fold, and ever since haven't looked back, and in all the 3 formats he's been a sensation. Must tell you that shifting from format to format is not that easy, as he shifted from city to city, Roorkee to Delhi to Rajasthan while he was in his formative stages, then finally came back to Delhi. But then one must say that in the under 19 in Bangladesh in the World Cup, he was the opener, so he does have the quality of facing the new ball. अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर घूमकर उसको घुमाना चाहते थे विकेट कीपर के सर के ऊपर से, लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली। विकेट कीपर ने बढ़िया गैदरिंग की। लेग साइड में लॉन्ग ऑन भी है और एक मिड विकेट भी है, उसके बीच का ध्यान उनका जा रहा है। इस बीच अगली गेंद को खेलने की कोशिश की, गेंद ऊपर सीधी तीर की तरह हवा में चली गई, टॉप एज लगा और भारत ने ऋषभ पंत का विकेट खो दिया है। एक ऊंचा स्ट्रोक घूमकर वो जो इलाका मैं आपको बता रहा था उस ओर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी ऊपर तन गई। कोई डिस्टेंस नहीं, कोई फासला नहीं। 30 गेंदों पर 39 रन बनाए जरूर हैं ऋषभ पंत ने, लेकिन उनको और भी रन बनाने थे। अच्छा फॉर्म आ गया है वापस, ये मैं कहने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय अपना विकेट उन्होंने जाया किया। और उस समय जब गेंद सीधी ऊपर ज्यादा चली गई, काफी समय मिला। हालांकि दुबई के इस मैदान पर ऊंचा कैच पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर टावर्स नहीं है, नीची लाइट्स हैं। So well, that wicket causes further discomfort to the Indians. In the meantime, IPKF authority